Good morning, students. Today I am going to teach you very interesting lesson, and that is plants. Children, plants are very important in our life. We cannot live without plants. प्लांट्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है. हम प्लांट्स के बिना जीवित नहीं रह सकते. Okay, students, let's see. Look here, children. Here are some parts of plant: roots, leaves, stem and flowers. Roots, leaves, stem and flowers. Children, look here. In this picture, as you see, this is root. The part of the plant that grows under the soil is called root. You cannot see it above the ground. रूट है, जो रूट है वो ज़मीन के अंदर होता है. We can't see root above the ground. और ये प्लांट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. रूट होल्ड अ प्लांट फर्मली टू द सॉइल. रूट प्लांट को सॉइल से फिक्स करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है. ओके. स्टेम. Stem supports the upper part of the plant. It carries water and minerals from the root to the other parts of the plant. Stem रूट से मिनरल्स, वाटर को बाकी पार्ट्स में सप्लाई करती है. Leaves. Children, leaves are important part of a plant because it produces food for the whole plant. जो लीव्स है वो पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती है, खाना बनाती है. Flowers. The most beautiful part of a plant is the flower. A flower blooms from a bud. The flower grows into fruit. The flower helps the plant to reproduce. Okay, children, let's start the lesson. Mrs. Juhi has a lovely garden. It is at the back of her house. There are in it many plants and flowers. Mrs. Juhi finishes her work in the evening. Then she loves to sit in her garden. Children, tell me, where does Mrs. Juhi love to sit in the evening? Mrs. Juhi को कहाँ बैठना अच्छा लगता था? She loves to sit in her garden. One evening, Mrs. Juhi was sitting in her garden. Her little daughter, Rosie, was also with her. Rosie wanted to pluck one big flower. Rosie wanted to pluck one big flower. Mom, she said, may I pluck this flower? How beautiful it is. One evening, Mrs. Juhi was sitting in her garden. Her little daughter, Rosie, was also with her. Rosie wanted to pluck one big flower. एक शाम को जब मिसेस जूही अपने गार्डन में बैठी हुई थी, रोजी, हर लिटिल डॉटर, रोजी भी उनके साथ थी. रोजी वांटेड टू प्लक वन बिग फ्लावर. रोजी एक फ्लावर जो बड़ा था साइज में, उसे तोड़ना चाहती थी. शी टेक परमिशन टू हर मॉम. उसने अपनी मॉम से परमिशन लिया. मे आई प्लक दिस फ्लावर? हाउ ब्यूटिफुल इट इज़.
मॉम, क्या मैं यह फूल तोड़ सकती हूँ? यह कितना सुंदर है। चिल्ड्रन, टेल मी, व्हाट डिड रोजी वांट टू डू? रोजी क्या करना चाहती थी? व्हाट डिड रोजी वांट टू डू? रोजी wanted to pluck one big flower. Rosie wanted to pluck one big flower. Now look here, children. Mother says, children, this is sign of colon. इस साइन को कोलोन कहा जाता है। ये किसी डायलॉग को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो मदर ने कहा है उसे दर्शाने के लिए कोलोन यूज हुआ है। ओके, मदर सेज, नो डियर, डोंट प्लक एनी फ्लावर्स एट दिस टाइम। डोंट यू नो प्लांट्स गो टू स्लीप एट नाइट? मदर सेज, नो डियर, don't pluck any flowers at this time. Don't you know plants go to sleep at night? मदर ने कहा, नो डियर, शाम को फ्लावर्स नहीं तोड़ते या इस समय फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए। डोंट यू नो प्लांट्स गो टू स्लीप एट नाइट? क्या तुम नहीं जानती हो प्लांट्स रात में सोते हैं? Rosie says, Mom, do plants also sleep? Mother says, yes, all plants sleep like us and they feel pain and pleasure like us. Rosie says, Mom, how can you say that? Mother says, J.C. Bose proved all this. He proved it by his experiments. Rosie says, Mom, who was J.C. Bose? Children, what do plants do at night? Plants रात में क्या करते हैं? Plants go to sleep at night. How do plants feel when we hurt them? जब हम plants को चोट पहुंचाते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं? How do plants feel when we hurt them? They feel pain when we hurt them. How do plants feel when we hurt them? Plants feel pain when we hurt them. Okay, children? Rosie asked to her mother, how can you say that? आप ये कैसे बता सकते हो या कैसे कह सकते हो? Mother says, J.C. Bose proved all this. J.C. Bose ने ये प्रूव्ड किया है अपने एक्सपेरिमेंट से। Mom, who was J.C. Bose? Rosie asked her mother, who was J.C. Bose? Mother says, he was a great scientist of India. Rosie says, what did he prove? Mother says, he proved many things about plants. He proved that plants sleep like us. They feel sad and happy like us. Rosie says, how interesting. What else did he prove? रोजी की मदर उसे बताती है कि जेसी बोस एक ग्रेट साइंटिस्ट है, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट है। रोजी अपनी मम्मी से पूछती है, अपनी मदर से पूछती है, व्हाट डिड ही प्रूव? उन्होंने क्या प्रूव किया है? प्रूव करना मतलब साबित करना या सिद्ध करना। मदर सेड, मदर ने कहा, ही प्रूव्ड मेनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स। उन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रूव की है, बहुत सारी बातें प्रूव की है। जैसे प्लांट्स स्लीप लाइक अस, प्लांट्स हमारे जैसे सोते हैं। दे फील सैड एंड हैप्पी लाइक अस, वो हमारे जैसे खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग,
रोजी को ये सब जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। What else did he prove? उन्होंने और क्या प्रूव किया है? Mother says he proved that plants eat and drink like us. They drink water by their roots. They breathe through their leaves. They get their food from the soil. They eat, drink, and feel like us. Only they don't move like us. मदर ने रोजी को समझाया कि प्लांट्स कैन ईट एंड ड्रिंक लाइक अस। प्लांट्स हमारे जैसे खा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दे ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स। दे ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स। वे अपने रूट्स के माध्यम से पानी पीते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स। अपने पत्तों की सहायता से वो सांस लेते हैं। दे ब्रीथ। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से, ज़मीन से अपना खाना लेते हैं। दे ईट, ड्रिंक एंड फील लाइक अस। वो हमारे जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और फील भी करते हैं। फील करना मतलब महसूस करना। सिर्फ इंसान और पौधों में ये फ़र्क है कि जो पौधे हैं वे अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग कैन मूव बट प्लांट्स कांट मूव। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बट प्लांट्स और ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग में। रोजी सेज, थैंक यू मॉम, यू हैव टोल्ड मी सो मच अबाउट प्लांट्स। आई शैल नेवर गिव देम पेन। आई शैल ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। मदर सेज, यस, that's like a good child. Now, I shall tell you a very strange thing about plants. Rosie says to her mom, thank you for the information. रोजी ने अपनी मॉम को थैंक यू कहा। उन्होंने प्लांट्स के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी रोजी को बताई उसके लिए। और रोजी ने प्रॉमिस किया कि आई शैल नेवर गिव देम पेन। मैं प्लांट्स को कभी पेन नहीं दूंगी, दर्द नहीं दूंगी। आई ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगी और उन्हें प्यार करूंगी। मदर सेज, यस, दैट्स लाइक अ गुड चाइल्ड। नाउ आई शैल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट्स। मदर ने कहा, मैं तुम्हें प्लांट्स के बारे में एक और बात बताती हूँ। रोजी सेज, टेल मी मॉम। मदर सेज, सम प्लांट्स ईट फ्लैश। फ्लैश मीन्स मीट, जिसे हिंदी में कहा जाएगा मांस। दे हंट फॉर देयर फूड। दे कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम। रोजी सेज, रियली? Yes, it is true. These plants trap insects and other tiny animals. They kill them for their food. Rosie says, tell me mom. जब रोजी की मॉम ने कहा कि मैं तुम्हें प्लांट्स के बारे में और कुछ बताती हूँ, रोजी ने एक्साइटेड होकर पूछा, टेल मी मॉम। मदर ने रिप्लाई किया, मदर ने बताया, सम प्लांट्स ईट फ्लैश। कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। दे हंट फॉर देयर फूड। वे अपने खाने के लिए शिकार करते हैं। दे कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम। वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं। रोजी वॉज सरप्राइज्ड। रोजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा, रियली?
मदर ने कहा, यस इट इज ट्रू. These plants trap insects and other tiny animals. They kill them for their food. Children, tell me, what do flesh-eating plants do? Flesh-eating plants catch insects and eat them. Look here, children. This is a picture of Venus flytrap. Venus flytrap. And this is a picture of pitcher plant. Pitcher plant. And this plant is called sundew. Sundew. The pitcher plant, the sundew, and the Venus flytrap are flesh-eating plants. Venus flytrap, pitcher plant and sundew. They are flesh-eating plants. Okay children? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स या छोटे छोटे बर्ड्स लाइक बटरफ्लाई, फ्लाई इन्हें खाते हैं. जब इंसेक्ट्स यहाँ बैठते हैं इनके ऊपर तो इनके जो बाल होते हैं या जो कांटों की तरह शेप होता है इसमें ये फंस जाते हैं. ओके, और फंस जाते हैं तो कुछ समय बाद वे मर जाते हैं और प्लांट्स उन्हें खा लेते हैं. मतलब वो प्लांट्स का खाना बन जाते हैं. ओके, द वीनस फ्लाईट्रैप, pitcher plant and sundew are flesh-eating plants. Now children, tell me name of some flesh-eating plants. आप कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं. तो व्हाट वाज द आंसर? Venus flytrap, Venus flytrap, pitcher plant and sundew are flesh-eating plants. Okay. Now children, look here. Rosie says, Mom, I never knew so much about plants. Thank you for telling me these interesting things. Mother says, Rosie, let's go in now. Your papa is calling. He knows a lot about plants. He'll tell you how these plants catch insects. Rosie says, yes, Mom. I'll ask him all about it. रोज़ी अपनी मॉम को बोलती है कि थैंक यू मॉम, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मुझे बताई. आई नेवर न्यू सो मच अबाउट प्लांट. मैं प्लांट के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी. एंड मदर सेज, रोज़ी लेट्स गो इन नाउ. अब हमें अंदर जाना चाहिए. योर पापा इज़ कॉलिंग. ही नोज़ अ लॉट अबाउट प्लांट्स. तुम्हारे पापा प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. वो तुम्हें बताएंगे कि प्लांट्स इंसेक्ट्स को कैसे पकड़ते हैं. रोज़ी कहती है, यस मॉम, आई विल आस्क हिम ऑल अबाउट इट. मैं पापा से सब पूछूंगी प्लांट्स के बारे में. Okay children, read the lesson carefully. Okay, thank you.